Good evening, students. Welcome back to the channel. This is Mohammed Mateen from Noble Mind Classes, and our new topic is today we have brought a new topic which is science and mathematical operations. Yes, आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं साइंस मींस मैथमेटिकल जो सिंबल्स होते हैं लाइक प्लस माइनस क्रॉस एंड ऑब्लस लाइक दिस एंड इन के करेस्पॉन्डिंग क्या ऑपरेशंस होते हैं और उनके रिजल्ट को हम क्या कहते हैं मतलब किस तरह से उसको अंडर किया जाता है और क्या इसका रिजल्ट कहलाता है. In this video I want to explain you this chart, and after this I will remove some mathematical misconceptions. Let us start the video. So initially we all know from our initial classes this is plus minus cross and oblus. So हमें ये सिखाया जाता है इनिशियली कि प्लस का मीनिंग होता है ऐड करना, माइनस का मीनिंग होता है सब्ट्रैक्शन करना. ठीक है, होता है ये. प्लस मीन्स एडिशन, माइनस सब्ट्रैक्शन. whenever we see plus we perform addition generally but not always. The same thing is with minus also. Cross, obviously when we are observing this cross like here 20 cross 5, so corresponding things are given. Plus when we have taken two numbers here 20 and 5, so 20 plus 5 25, 20 minus 5 15, 20 multiplied with 500, 20 divided by 5 will give you 4. So these are the operations obviously. लेकिन यहाँ ये निशान है, इन निशान या चिन्ह या साइन जो भी कहें, तो ये हमारे साइंस दे रखे हैं, उनके करेस्पॉन्डिंग हमारी ऑपरेशंस होती हैं. वी हैव टेकन टू नंबर्स 20 and 5. व्हेन यू विल ऐड 20 and 5 you will find 25. obviously very fundamental things. सर आप ये बच्चों वाली चीजें क्यों पढ़ाने लगे आप? obviously I know that all of these are the kidding things, but still some misconceptions are to be removed. That is why I'm having to take this. समझ रहे हैं आप? तो इसलिए हमें, क्योंकि हमें कुछ मैथमेटिकल गलत फहमी है जो हमारे गलत आंसर आने की वजह बनती हैं, उनको दूर करना है, इस वजह से हमें बताना पड़ रहा है. हालांकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नो दिस वेरी वेल. सो ऐड किया हमने 20 इन 5 को 25, सपरेट किया तो 15, मल्टीप्लाई किया तो 100 और डिवाइड किया तो 4. ये डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे सामने. अच्छा, जब ये रिजल्ट्स आ रहे हैं तो इनके नामों को भी समझ लेते हैं, क्योंकि हमेशा हमसे ये नहीं कहा जाता कि ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, ये डिवाइड कीजिए. क्वेश्चन में अलग तरीके से भी वो पूछ सकते हैं. इफ दे आर आस्किंग फाइंड द सम, इट मींस दे आर आस्किंग फॉर एडिंग समथिंग. सपोज इफ दे आर सेइंग फाइंड द सम ऑफ 20 and 5, इन अदर वर्ड दे कैन से ऐड 20 and 5. या तो बोल देंगे 20 और 5 को ऐड कीजिए, या वो ये भी कह सकते हैं कि फाइंड द सम ऑफ देम. ठीक है, तो चाहे ऐड करने को गए हैं या सम निकालने को गए हैं, सेम बात है. बिकॉज द सम इज द रिजल्ट ऑफ एडिशन. 20 plus 5 will give you 25. It means the sum comes out to be 25. So the sum is the result of addition. Likewise, subtraction, the result of subtraction is difference. अगर मैं आपसे कहूं कि what is the difference between 20 and 5, अगर एक भाई 20 साल का है और एक भाई 15 साल का है, one brother is 20 years old and other one is 15 years old. What is the difference in their ages? So ultimately you will say 5 years. Why? How have you obtained those 5 years? कैसे आपको पता चला कि 5 years का डिफरेंस है, 5 years का अंतर है उनमें? तो ये फर्क आपने सब्ट्रैक्शन करने के बाद जाना. So whenever we subtract the things, we find the result as difference. So sum is the result of addition and difference is the result of subtraction. Like this, cross, whenever we see cross we generally perform multiplication. 25s are 100, so the result comes out to be 100. What will we say 100 here? Product. Okay, 100 यहाँ पर क्या है? प्रोडक्ट. 100 प्रोडक्ट है यहाँ पर, ये जरूरी नहीं है प्रोडक्ट हमेशा 100 ही आए. 50 plus 50 will give you 100. That is the sum because we are adding. Whenever we are adding, that is the result will be sum. Otherwise, depending on the sign and depending on the operation, the result will be different. So why are we studying this? Because the question can be changed into other language. So accordingly, we should understand this also.
सो अगर ये चीजें अलग अलग तरह से पूछ ली जाए तो हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन ऐसे ना कह के ऐसे भी किया जा सकता है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 20 एंड 5. सो द प्रोडक्ट ऑफ 25 will and 5 will be 100, because the product is the result of multiplication. The same way quotient is the result of division. Whenever we are dividing 20 by 5, then we will get 4. So 4 is quotient here. ठीक है, तो ये हमारे निशानात हैं, चिन्ह हैं, उनके करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन किए जाते हैं और इस तरह से करते हैं हम. ये फंडामेंटल चीज है, लेकिन जो रिजल्ट आते हैं इन ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हम उन रिजल्ट्स को ये कहते हैं. सो नाउ लेट अस सी, we can take other examples also. Like if I say what is the sum of 20 and 15. So whenever you are supposed to calculate the sum, you will add, ultimately you will add. So the sum comes out to be 35. But if they are asking about the difference, अगर वो sum ना पूछ के difference पूछ रहे हो तो क्या करेंगे हम, क्योंकि हम जानते हैं कि डिफरेंस जो है वो रिजल्ट होता है किसका, सब्ट्रैक्शन का. हमें वहां घटाना पड़ेगा अगर वो डिफरेंस मांग रहे हैं तो. सो देन यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट. नो, you can take other numbers also. If they are asking about the difference of 80 and 60, so you will subtract the smaller one from the bigger one. This is also a point only in subtraction. In other operations, whether it is addition, multiplication or division, that can be done directly. But in case of subtraction, whenever especially the term from is used in that question, then you will have to take the afterwards number earlier and the first number as a second number after minus. So 60 from 80 means 80 minus 60 simply. जो फ्रॉम के बाद वाली नंबर उसे पहले लिखा जाएगा, फिर माइनस का निशान लगाएंगे सब्ट्रैक्शन के लिए, और फिर हम पहले वाले नंबर को बाद में लिख देंगे. दैट्स इट. So in this way we will be able to find the difference, whatever it comes out to be. But the main thing is, whenever you are supposed to calculate the difference, then you will be subtracting as per the table. And suppose if someone is asking you, sir, what is the difference between what is the product of 13 and 4? So if they're asking about product, you will be writing like this. Why multiply? Why cross? Because they are asking about the product. 13 fours are 52, whatever. So we have multiplied. Why? Because of the term product, we have multiplied here. If they would be asking what will be the quotient, whenever you will hear quotient, it simply means that you have to perform division. You are going to divide them. So this chart is very important. You may take the screenshot of this chart and then note it down. This will help you a lot. तो ऑपरेशंस और उनके रिजल्ट्स को समझने के बाद अब हम आते हैं उन गलतियों की तरफ, उन मिसकॉन्सेप्शंस की तरफ आती हैं जो हमारे आंसर के गलत होने का रीजन बनती हैं. सो लेट अस सी. हमें क्या सिखाया जाता है बचपन से कि प्लस का मीनिंग होता है ऐड करना. अक्सर ऐसा ही होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता ऐसा. दोस्त और दुश्मन वाली कॉन्सेप्ट लगानी है. बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए. जब भी मैं दोस्त कहूँ या फ्रेंड कहूँ तो इसका मतलब यह है कि हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं. इंटीजर्स क्या होते हैं हम प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं. और जब भी मैं दुश्मन कहूँ तो वहां हमें नेगेटिव इंटीजर्स की बात करनी है. ठीक है. अब सर हम कैसे पहचाने कोई सी चीज पॉजिटिव होती है निगेटिव होती है? ये चीज हमने प्रीवियस वीडियो में कवर की थी, लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं. जिससे पहले माइनस निशान हो वो नेगेटिव, और जिससे पहले प्लस निशान हो पॉजिटिव, और जिससे पहले कोई निशान ही ना हो तो वो भी पॉजिटिव. सो दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ नंबर, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. सो -15 +15 and there is also +15. If nothing is there before any number, that is positive. It is considered to be. And अभी जो हम बात कर रहे थे किसकी, कि भाई प्लस का मतलब हमेशा एडिशन नहीं होता, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है. ऐसे ही माइनस का मतलब हमेशा सब्ट्रैक्शन नहीं होता, एडिशन भी होता है. बेसिकली प्लस और माइनस का मतलब ये ऑपरेशन होता ही नहीं है. हाँ वो लेकिन ये बात अब कब समझेंगे जब आप सिंप्लीफाई करने वाले बन जाएंगे. अभी प्लस या माइनस का अल्टीमेट मीनिंग ये होता है कि उस पर्टिकुलर नंबर का नेचर क्या है.
whether it is positive or negative, plus by using the concept of दोस्त and दुश्मन. So let us see. इससे पहले माइनस का निशान है और इससे पहले प्लस का निशान है, और वी कैन से दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, और ये 15 दुश्मन है और 20 दोस्त हैं. जब एक ग्रुप दुश्मनों का हो और एक ग्रुप दोस्तों का हो तो वो साथ में मिलकर नहीं बैठ सकते, दे विल फाइट विद ईच अदर. और हमें इस फाइट में ये भी ध्यान रखना है कि एक दुश्मन एक दोस्त को मारकर मरेगा या एक दोस्त एक दुश्मन को मारकर मर जाएगा. दे विल किल ईच अदर. ओके, whoever is remaining they are winning, and accordingly, and suppose in this concept who is fighting, when will we say that fight is taking place? If opposite groups are there, ultimately they will fight with each other. If the same groups are there, they will not fight. I am taking for different examples to understand the concept of friends and enemies, या कहें दोस्त और दुश्मनी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें इन 4 एग्जाम्पल्स का सहारा लेना पड़ेगा. पहले एग्जाम्पल को देखते हैं. These are friends, these are enemies. Positive friends and negative enemies. They will fight with each other. They will fight with each other means वो आपस में लड़ेंगे. एक दोस्तों का ग्रुप है, एक दुश्मनों का ग्रुप है, साथ में प्यार से नहीं बैठेंगे, वो लड़ेंगे आपस में. तो रिजल्ट क्या होगा? सब्ट्रैक्शन. जब भी लड़ेंगे सब्ट्रैक्शन, जब भी प्यार से बैठेंगे एडिशन. ठीक है, मीन्स डिफरेंट साइंस में हमारा सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि वो अपोजिट ग्रुप्स के हैं, और सेम साइंस में हमारा एडिशन होगा क्योंकि वो सेम ग्रुप के हैं. जैसे +20 -15, मतलब 20 दोस्त हैं और 15 एनिमीज हैं. अलग अलग ग्रुप है, एक दोस्तों ग्रुप है, एक दुश्मनों ग्रुप है. प्यार से साथ में नहीं बैठेंगे, दे विल फाइट विद ईच अदर. इफ दे आर फाइटिंग मीन्स subtraction will take place. If they are sitting together with love means addition will take place. या तो दोनों ग्रुप्स फ्रेंड्स के हों या दोनों ग्रुप एनिमीज के हो, देन दे विल सिट टुगेदर. लाइक यहाँ 20 एनिमीज ये हैं, 15 एनिमीज ये हैं, दोनों ही दुश्मनों के ग्रुप हैं ये दोनों. क्योंकि सपोज कीजिए कि हमारे 20 एनिमीज इधर खड़े हैं, 15 एनिमीज इधर खड़े हैं, तो वो दोनों हमारे एनिमीज है, वो मिल जाएंगे आपस में, मिल करके मारेंगे हमें. ठीक है, मतलब 15 वो और 20 वो तो मिलाकर के 35 हो जाएंगे, लेकिन है तो हमारे दुश्मन ही ना, तो वो अभी समझते हैं. फिलहाल सेम ग्रुप है, दोनों ही माइनस के हों तब भी ऐड करने हैं, दोनों ही प्लस के हों तब भी ऐड करने हैं. इसका मतलब क्या निकला कि माइनस का मतलब हमेशा सब्ट्रैक्शन नहीं होता. अच्छा, अगर अपोजिट साइन है तो उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, चाहे बीच में माइनस आ रहा हो चाहे बीच में प्लस आ रहा हो. इसका मतलब क्या निकला कि प्लस का मतलब हमेशा एडिशन नहीं होता. सो लेट अस सी 20 फ्रेंड्स एंड 15 एनिमीज. इनको कम्यूट भी किया जा सकता है. इफ यू आर कम्यूटिंग दिस देन वी विल बी फाइंडिंग लाइक दिस -15 + 20. सेम रिजल्ट रहेगा. 20 दोस्त 15 दुश्मन, 15 दुश्मन 20 दोस्त. बात तो वही है ना. सो दे विल फाइट विद ईच अदर एंड only 5 friends will be remaining. The same way is to be adopted here. तो क्योंकि सेम चीज है, चाहे आप +20 -15 कह लें या -15 + 20 कह लें, हुआ क्या हमने इस तरह से कम्यूट ही तो किया है. अगर बेटा बाप की जगह बैठ जाए, बाप बेटे की जगह बैठ जाए, तो बेटा बाप थोड़ी बन जाएगा, बाप बाप ही रहेगा. ठीक है, सो दैट इज द थिंग. नाउ लेट अस सी -20 + 15, or you say -15 or +20, sorry, +15 and -20. So both of these cases are same. क्यों? 20 दुश्मन हैं, 15 दोस्त हैं, 15 दोस्त हैं, 20 दुश्मन है, रिजल्ट सेम आएगा. फाइट का फाइट होगी डेफिनेटली. डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ये दोनों अलग अलग हैं. दुश्मनों का ग्रुप भी और दोस्तों का ग्रुप भी है. तो यहाँ कौन जीतेगा? यहाँ दुश्मन ज्यादा है. एनिमीज विल विन हियर. So -5 and here also -5. Okay. So now in the third one, both of these groups are of enemies. 20 दुश्मन यहाँ है, 15 दुश्मन यहाँ है तो हमारे दुश्मन ही ना, वो इकट्ठे होकर बैठ जाएंगे. So ये हो जाएंगे आपके 35. लेकिन है कौन ये? 20 एनिमीज ये थे और 15 एनिमीज ये हैं. तो ओवरऑल कितने एनिमीज हो गए? 35. लेकिन सर आपने तो माइनस लगाया नहीं है, तो फ्रेंड्स हैं भी तो ये, ऑब्वियसली वी शुड अप्लाई माइनस हियर. सो 20 माइनस के हैं, 15 ये हैं, तो टोटल 35 हो गए माइनस के. मतलब 20 दुश्मन ये, 15 दुश्मन ये, कुल मिला के 35 दुश्मन. 20 -20 -15 विल गिव यू -35.
मीन्स ये हमारा एडिशन हो गया नेगेटिव इंटीजर्स का। अच्छा इधर आ जाते हैं, हम उनको देखेंगे कि ये वही बात है, सेम चीज, बस हमने कम्यूट कर दिया, निशान वही है। तो ये भी 35 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 20 फ्रेंड्स एंड 15 फ्रेंड्स, सो ये कितने हो जाएंगे हमारे 35 फ्रेंड्स हो जाएंगे। अच्छा जहां शुरू में प्लस लगा हुआ होता है उसे ना भी लगाओ तो चलेगा, उसका अल्टीमेट मीनिंग प्लस ही होता है। ऐसे ही यहाँ पे हमारी ये चीज हो जाएगी +15 एंड +20 मीन्स इट विल गिव यू +35, यानी 15 दोस्त ये हैं, 20 दोस्त ये हैं, कुल मिला के 35 हो जाएंगे। दिस इज द वेरी फंडामेंटल थिंग दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डोंट नो। वो सिंपली इन झमेलों में पढ़ते हैं कि भाई माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, सो प्लस प्लस प्लस, हर जगह फॉलो नहीं होती बात। वो बात किस में फॉलो होगी, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स में फॉलो की जाएगी वो बात। So either that is multiplication of integers or rational numbers that we will be knowing in upcoming videos. But right now I am giving you another example. Let us try this. You may also try and tell me the answer in comments. And then firstly let me solve this, how to do this question. यहाँ हमें दिखाई क्या दे रहा है, यहाँ 50 है, ये फ्रेंड्स है या एनिमीज है, एनिमीज है। क्यों एनिमीज, क्योंकि नेगेटिव है। और ये फ्रेंड्स हैं, एनिमीज एनिमीज फ्रेंड्स, एनिमीज फ्रेंड्स। सो क्या किया जाएगा, इसमें होगा ये कि सभी तरह के ग्रुप्स मौजूद हैं, तो सारे दोस्त एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे और सारे दुश्मन एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। तो लेट अस गैदर देम, आइए नहीं इकट्ठा करते हैं। यहाँ 29, तो फ्रेंड्स को इकट्ठा कर लेते हैं, 29 एंड 21, 50 एंड 51। सो ओवरऑल कितने फ्रेंड्स हैं यहाँ, 101, 101 friends are there. And what about the enemies? सारे फ्रेंड्स एक जगह इकट्ठे हो गए, अब सारे एनिमीज एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। लेट अस सी हाउ मेनी एनिमीज आर देयर। 50 एनिमीज ये हैं, 17 ये हैं, 67 एंड 4 71, 71 एंड 10 81, so means 81 enemies are there. Why I've taken minus, because they are enemies. अब ये सारे दोस्त हमने एक जगह इकट्ठे कर लिए, सारे दुश्मन एक जगह इकट्ठे कर लिए। अब हम ये देखेंगे, अब इनको लड़वाएंगे, क्योंकि अब ये दोनों अलग अलग ग्रुप हैं, ये दोस्तों का ग्रुप और ये दुश्मनों का ग्रुप है। नाउ वी विल बी सबट्रैक्टिंग देम। कौन से ज्यादा हैं, दोस्त ज्यादा हैं, दुश्मन कम है, दोस्त जीत जाएंगे। मीन्स जो आंसर आएगा वो दोस्तों वाला आएगा, मीन्स प्लस आएगा। अगर दुश्मन ज्यादा होते तो माइनस का आंसर आता, ठीक है। तो यहाँ 20 आंसर आ गया प्लस का। सपोज अगर ऐसा होता कि दोस्तों से भी ज्यादा दुश्मन होते, मान लीजिए 105 यानी कि 105 दुश्मन होते, तो यहाँ पर -4 आंसर आता। क्यों, 5 तो यहाँ भी होगी, ये दोस्त हैं दुश्मन है, लेकिन दुश्मन ज्यादा होते तो माइनस का आंसर आता, हम दुश्मन जीतते तो, क्योंकि यहाँ प्लस का आंसर आया, क्योंकि यहाँ दो जीते हैं। This is the concept based on friends and enemies. So although you can adopt your own method also depending on your thinking, but generally I use this thing, so this can help you. So on the basis of this concept you have to solve these questions, and you have to answer in the comment box without reading the comments. Okay, so now get ready to solve these three questions. स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अपने उन दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जो इस गलतफहमी का शिकार हैं, जो इन मिसकॉन्सेप्शन से अवेयर नहीं है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कीप लविंग एंड वॉचिंग एंड सपोर्टिंग। थैंक यू।